any किसी ने चेक किए बेटा? यस सर, देख चुके हैं उसको। अच्छा, any confusion with that one? नो सर, TQM डिस्कस किए सर, बस क्लियर है अच्छा, सर। अच्छा, let me go through just quickly over the last week lecture that what we done. I hope if anybody still have any problem, so you can consult the recorded lecture so they can have a better idea of that one. But let me go through the last week, uh, what we done so that week, and that we will go from there onward. Okay, beta. So let's start with the total quality management system. We discussed the TQM philosophy last week, and we discussed that what we mean by the TQM. So the TQM has a different version. The one that is what we mean is main aim of the TQM is to have a zero defects. When you have a zero defects, so what does it mean? सर जी 100% कंफर्मेंस होगी। 100% confirm is to what? तो क्वालिटी स्टैंडर्ड। To the quality standard. Good. Okay. And the other dimension of the TQM is having a low price. A low price means that affordable price for the consumer, affordable price for the customer, affordable price for the society. And whatever the product or service we deliver, that should be affordable to the consumer, and that should be affordable to the society. Then when we think of that one, that if you have a quality and if you have a low cost, so that is a difficult to manage. So the TQM is one of the other dimension that they can manage the quality with a low cost. Okay. And the other one that we have to talk about the safety of the product, safety of the worker, and safety at all level within the organization. uh, and the other dimension of the TQM is adherence to the standard, that we conform is to standard, compliance to a standard. That when we talk about the standards, that means that it should have a very much 100% confirm compliance. At 100% compliance means that will automatically lead towards you a 0% defect. And then we can have a flexibility and adaptability to change, that the system shall be able to have flexibility. If there is any flexibility, if there is any change is coming, so that that system shall have the ability to adopt that self according to the change, or according to the requirement, according to the needs of the day. So that's on that one. The other dimension of the TQM is that should have a flexibility and adaptability to the change. And then at the end we talk about that customer satisfaction. So when we uh, have this all these kind of things, like for example, the one is the zero defects, the low price, quality with a low cost, safety, adherence to a standard, and flexibility and adaptability to change. And then we talk about the customer satisfaction. So this is all about the TQM philosophy. So why we need a TQM? Because there were some company, they were having some losses, and based on that one, they think that now the quality is one of the dimension, that based on that one we can compete with the world. If you remember, I gave you in the first lecture that there are three factors on the base of which the company will have to compete with other companies. One was the quality, one was the delivery time, and the other one was the कॉस्ट। cost of the product as well. Good. So based on this one, we have some sort of the this was getting a popularity as a buzzword of the TQM, but then the people, the company was thinking that we are doing this, these all these kind of thing in some form or the other form. But unfortunately, the many companies were not was not satisfied with the perceived result of these programs, because when you talk about the TQM, so TQM is a long-term program, and that need long time, that need more time, that need just like a more time to have a result on that, because this is a not a just like a one-day process. This is a continual process, a continuous quality improvement process. So based on that one, this will take more time to result, that the real result will be getting
just like observed, or it will getting indicated. So unfortunately, many companies were not satisfied with this kind of thing, like because the companies need less time and they want a more quick result under that one. But the TQM is not that much philosophy and it needs time because it has to change the culture. So based on the culture change, the many companies were not satisfied with this one because so now we have to look at whether they are why they were dissatisfied and was their dissatisfaction was justified or not. So TQM is generally called is the is called the made of the whole. Like this is a whole degree of excellence. Like when we talk about total, so it means made of the whole. Quality means the degree of excellence. Management means the planning and art of the. So that the TQM is mean is art of managing the whole to achieve an excellence, and that was the basic theme of the quality management. What does the TQM mean? So that was the text definition or subjective definition of the TQM, and that was different goals of the like the goals of the TQM is just like we have to do the things right for the first time, and then every time we do it, so we have to do it the right thing. Third, how another way to put it like this one, that it is the simplest. The TQM is the all manager is all manager leading is all managing, leading, and facilitating all contributors in every two main objective. And what are the two main objectives of the TQM is? Number one. One is the total client satisfaction, or what you call is the customer satisfaction, and the other one is the continuous improvement. Once you made the customer satisfied, still you need to work on how I can improve my services, that I have to improve or I have to get more satisfaction of the customer. So based on this one, these are the two objectives of the TQM. Number one is the customer satisfaction or total client satisfaction, and the second one is the continuous improvement, improving the service or the product continuously to the for the satisfaction or beyond the satisfaction of the client. समझ आ रही बेटा? Yes, sir. Okay, then we have one traditional view, like the quality can be improved, cannot be improved without losses in productivity. Like कि जब तक आप प्रोडक्शन को कम नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी जो क्वालिटी है इम्प्रूव. जैसे मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, अगर थोड़ी से कम चीज़ें बनाओगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. ये एक ट्रेडिशनल व्यू है. लेकिन TQM का व्यू ये है कि जब आप क्वालिटी के साथ काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली खुद इंक्रीज हो जाती है. वो कैसे कि आपकी जो डैमेजेस है या आपकी जो डिफेक्ट्स है वो जीरो हो जाती है. तो आपका जो जीरो डिफेक्ट्स है वो भी ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है बेटा? Yes, sir. Okay. Basic tenets of the TQM, basic principle of the TQM is just like the customer make the ultimate choice. The top management must provide the leadership. Preventing variability is the key to the producing the high quality, and quality goals are moving target. Improving quality requires the establishment. There are 6 basic concepts, like for example, management commitment, focus on customer, quality at all level, continuous improvement, treating supplier as partner, and establish performance measure for all the processes as well. The 3 aspects of the customer, the TQM, one is the counting, like there are different type of technique tool which are used as a counting tool for the TQM. The customer, which means is the quality of the customer as a driving force and central concern, and culture. When you have a beliefs and when you have a shared values within the organization, and that is expressed by the leaders, that defines and support the quality. So these are the 3 basic aspects of the TQM as well. So the TQM and continuous improvement, what is the subjective definition of all these things? We have one traditional view and one is the which is more focused on short-term goals, which is more focused on the individual, which are more focused on the status quo, which are more focused on the firefighting process. But when we talk about the continuous improvement, we talk about the customer focus, we talk about not individual, but we focus on the team working,
We focus on the how we can do the service improving, how we can talk about the long term, continuous improvement, process improvement, incremental improvement rather than innovation, and then we talk about the problem solving rather than the firefighting process. So these are the two contrasting view can compare to the traditional approach toward the continuous improvement approach. And the continuous improvement approach is the basic driving force for the total quality management system. Then we have to talk about the quality throughout, not as individual, not at one level, not at, but if we have to talk about the quality, and we have to think about the quality at all levels, like the customer impression, and then the quality extend to how the reception answer the answer to. This is what we mean is the first impression you get about the connection with the industry. So that is establishing your views regarding the quality of that product as well. So all department of the company must strive to improve the quality for their improve the quality of their operations. So this is how the, like for example, the first thing is just like you can talk about the so the first thing, that is the basic level of the quality improvement, that is what we call inspection, and when you do it improving more, so that is what we call the quality control, and when you improve it more, so that is what we call the quality assurance. But the total quality management system improving or just supervising or just subordinating or overseeing is all these products. So the quality assurance, quality control and inspection is all part of the total quality management system. So the total quality management system is overall looking into all these aspects as well of the system. So this is how the historical evolution of the total quality management system start. It started from inspection, that it leading toward the quality control, it leading toward the quality assurance, and then the quality assurance leading toward the total quality management concept. We have the value-based approach where we have talked about the manufacturing dimension, and then we talk about the service dimension of the system as well. So we have the objective of the total quality management system is what we talk about the continuous improvement. What are the different type of principle we have to use? We have to use the customer focus. We have to use improving in the process. We have to involve everybody, not individual, but we have to involve everybody in this in the organization. What are the different elements that is being playing a very key role in improving the continuous and getting the objective of the total quality management system done? These are the leadership, education and training, support structure for the employees, communication between the different departments, reward and recognition for the best performance, and the measurement, like the you can talk about the like the measurement process, measuring the process or measuring the performance of the system. That is also a very key element to the principle and the objective of the total quality management system. And then there are different type of obstacles that we discussed last week about the TQM implementation. Anybody would like to make any comment? What are the different obstacles that can be toward the improving or implementation of TQM? Give it up. Anybody? No, sir. Anybody else? Sir, whatever I do, whatever I deliver and whatever I make. Okay, good. Like इसमें ऐसी कौन से आपके ख्याल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप कहेंगे कि ये इसके अगेंस्ट ऑब्स्टिकल है? अगर आपका मैनेजमेंट इंटरेस्टेड ना हो तो फिर ये नहीं हो सकता. लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, इनएबिलिटी टू चेंज ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चेंज नहीं होना चाहता तो फिर that will not be having problem, that will have a problem in implementation of the TQM. Improper planning, lack of continuous training and education. हमने इसमें अगर आप चाहते कि बैक एलिमेंट पे हमने जो ये की एलिमेंट
If you have a different, if your focus is not a customer focus, if your focus is a principle is not improving the process, or if your principle, your working is not total involvement, you do not believe, then these are the problem. If any of these is not interested, like for example, if you do not have a good leadership, if you do not provide education and training to your employees, if you do not have a good support structure, if you do not have a good communication strategy, if you do not have a regard and recognition, and then you do not have a good measurement system, then it is difficult to implement the TQM system. And these are all these kind of things. That is what we discussed. Incompatible organizational structure, isolated individual and department. If you have an isolated department and individual, it means there is no coordination and communication between the department. Okay, beta? And then Yes, sir. ineffective measurement technique. If you do not have a good measurement, and that will lack of access and data, that will not be possible to have implementation or to observe or to analyze the system. Then we talk about the paying inadequate attention to the internal inadequate attention. अगर आप अपने internally or external customer जो भी आपके हैं, if you do not paying a very good attention to them, it will not be possible to implement the TQM philosophy, because the TQM is all about the customer satisfaction, and then adequate use of empowerment and team, and then failure to improve the continually. If you are not improving, if you do not strive for improvement continually in the process, it will lead toward a failure in the implementation of the TQM. Now we discuss up to this point. Now what are the different types and tools of the we discuss about the different tool. अच्छा, last time मैंने आप लोगों को कुछ एक ट्रेनिंग का कहा था. Anybody have did that training? सर वो लिंक आपने शेयर नहीं कर दिया है वो हमारी तो मैंने तो आपको क्लासरूम में सर बता दिया कि ये पेज आप लाइक कर दे, उसके ऊपर है. वो पेज तो लाइक किया है सर, उसको फॉलो भी किया सर. अच्छा ठीक है, चले मैं लिंक शेयर कर दूंगा. ठीक है बेटा. अच्छा ओके सर. सर. आपने किया 12 तारीख की बने सर, 12 तारीख जी. दोबारा बोले बेटा. हेलो हेलो जी. सर जी मेरे ख्याल किसी और से बात कर रहा थे. अच्छा ठीक. सर उन्होंने 12 जून का डेट के बने पे. अच्छा 12 जून दिया हुआ है ट्रेनिंग के लिए. यस सर. अच्छा वो मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द डे वो सैटरडे संडे को ही फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं. ठीक है बेटा. तो आप लोग उसको यस सर. जरूर करवाएं. ठीक है बेटा. अच्छा there are different 7 different quality control tool. अच्छा number 1 there is a process flow diagram sheet, check sheet. This is a different tool. Histogram is another kind of tool that is being used to control or to observe or to implement the TQM. Pareto diagram or Pareto analysis, cause and effect diagram, scattered diagram, and then we talk about the control charts. And the other one is what we call the 5S technique, which is called the 5S. And for that purpose, for this one, I discussed about that you have to go for the link. I will share the link, and they provide the Toyota and United Nations Association of Pakistan provide training on the 5S or Kaizen technique. So you have to do register yourself for that training, and you will get an international certificate for that one as well. And it's almost about 1.5 hour training as well. Okay, beta. And if you are more interested, they have also run the competition where they you will be asked to share a video of 1 minute based on the training and to share on their page, and they will just look into that one, that whether you have won the prize or you haven't won the prize. It is about 50K prize as well as there. So it's a very good opportunity for you people. Okay, beta. Okay.
So the first thing is about the 5S is a 5S thing. What about the sort it out? Like for example, if you have a mess around, so that your performance will not be fine. Like for example, if you just look at your study table, and if all the books are scattered around, if it is not in order, if it is not in structure, so what you will do? And if you need just like a note of the engineering material, or if you're looking for a notes of the class notes of the, let's say, the heat and mass transfer, or the class notes of solid mechanics, or the class notes of machine design, so you will have to look at all the books. So that will give you a tiredness in the system. So the first thing you will have to do, you have to sort it out. Like for example, if you have all these different tool in the system, what you have to do, you have to sort it out in all these. Like for example, if you have 3 screwdrivers, if you have 5 keys, if you have 7 different type of, let's say, cutters, or if you have, let's say, like for example, screwdriver. So now these are all put in one basket. So when you look at the cutter number, like for example, a cutter that is not so like a medium cutter, so you will have to look at all these baskets. So what you will have to do, first you have to sort it out. Like these are all the screws, then the cutter separate, these are all the screws separate, the screwdrivers are separate, and then the keys are separate. So this is what we mean to sort it out. Then you have to put them in order. Like for example, if you have a 7 cutter, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all these have a different number. So you have to put them in order. Okay, then sit in order. After that one, if you do not need anything, sweep them. समझ आ रही है बेटा? Sweep means you have to clean the surrounding. Anything you do not need, throw it away. समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. And then the third one, the fourth one is standardized, and make this process a standardized process. That whenever, like for example, standard operating procedure, like for example, if you want to install the Windows on the computer, so that is a standard operating procedure. Like for example, you have to put the CD or USB, or just like the source file, then you have to run that one. Then you have to put on all the click on, or just like switch off all the other application that you have. Then you have to put on next and next and next. All this is standardized procedure. So make them a standardized, and then you have to sustain them. Once you have sorted out, you have put them in set in order, you have cleaned the environment, you have standardized the procedure, then you keep them sustainable, keep them sustained. Do the same thing every time you are doing it. So just like this is what we call the 5S technique. समझ आ रही बेटा? अगर आपके घर में, फॉर एग्जांपल, आपका किचन है, if you want to help out your mother in sorting it out, all these kind of, so you have to make them arrangement for all, just to ease of her business, or ease of her working, just like daily routine. उनके लिए आप इसको बिल्कुल सिस्टमाइज करें, उसको फिर सॉर्टेड आउट करें, उसको सेट इन ऑर्डर रखें, और फिर आप उसको फिर लेबल करें कि ये जो कैबिनेट है, ये इसमें ये चीज़ पड़ी हुई है, ये कैबिनेट इसमें ये चीज़ पड़ी. सो देन शी विल हैव अ वेरी गुड टाइम व्हेन यू वांट टू लुक एट समथिंग, सो शी विल गो डायरेक्टली इनटू दैट प्लेस एंड शी विल टेक इट आउट. समझ आ रही है बेटा? अदरवाइज शी विल हैव टू लुक एट ऑल द kitchen, or just one single bottle of, just like you can have the black pepper, or just like the coriander or something else. समझ आ रही है बेटा? जी हेलो. Yes, sir. सर हुआ है क्या ना जालिम ज़माना? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं?
आ रही है, ठीक आ है रही है। यस सर, आ रही है। आप बस तास वो टूल उदय आ रही है बताओ सर। विथ यू। ठीक है यस सर। okay. And then we have another technique which is called Kaizen. And Kaizen is like, for example, you can talk about all the time. Like, for example, the 5S technique is sometimes you just do it. Like, for example, once you have done this one, okay, beta, and you leave it. Yes, sir. That does not. Some later, I think. जी जी बेटा बोलें हेलो अरे कवाए का ना वसीम ने वसीम सर जी बड़ा वो तो है या को मंग सर खबर का या बलचा सर खबर का मंग तो पता नहीं तो क्वेश्चन की मुझे क्वेश्चन की बे खबर है ना की okay beta okay like for example if we have let's say on a 5S technique we done some standardized procedure and let's say we have put them in order like for example this is one this is another thing this is we have all 1 2 3 we have sorted out we have put them in order and then we have followed the SOP for this one standardized and then next time we just like doing the same thing but if you want to increase the productivity I can think of something कि for example अगर इस 2 को मैं यहाँ पे रख दूं 2 को इधर रखूं 1 को यहाँ पे ले और 3 को इधर रखूं इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है ठीक है बेटा या मैं 1 को इधर रखूं 3 को इधर रखूं और 2 को इधर रखूं तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इसको फिर हम कहते हैं काइजन टेक्निक इसको हम कहते हैं जापानीज कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को हम फिर नॉर्मली कहते हैं कीप ऑन चेंजिंग ठीक है बेटा व्हाट वी मीन कीप on changing and to improve the productivity for example if you have the first semester so you have done a very good job and you have improved the let's say you have 3.02 CGPA but next time you just did some changes into your procedure, your understanding, your study procedure, your study routine, and your all this thing, and then you improve system. So that is what we call you keep on changing, and then suddenly, and you just keep on going and going and going, and then you increasing continuously increasing and improving in the system and the performance and the productivity. So this is what we call the Kaizen technique or Kaizen concept. Then we have another different type of quality tool which we call is the Pareto chart. So we will discuss this one more in detail after the class. This finishing, let's say the histogram. You have okay, the histogram. Like for example, if I just want to study, like for example, that how many students have, like for example, if you have the, if I just want to, if you have a 40 student here, and if I want to have the heights of every student, so somebody will have like, let's say 6.6 feet, somebody will have a 5 feet height, somebody will have a 7 feet height. Let's say the average height is 6 feet. The minimum height you have, let's say 5 feet and 2 inch, and the maximum you have 6 feet and let's say 9 inches. Okay, so this is the maximum
and this is the minimum. And then you have frequency in the system, that how many students have this height, how many. So this is what we call the histogram analysis. Okay, beta? So from this, you can have a very better idea of how the system is distribution, how the population is distributed in the system. समझ आ रहे बेटा? That is what we call frequency, the number of occurrence. Against the category. Like for example, if you have the frequency like the number of student here, and here you have the height. Let's say this is the minimum height. This is, let's say, the maximum height, and this is, let's say, the average height. This is again one thing. Or you have, this is the mean value, and this is the minimum value, and this is the maximum value, and you can have plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4. Let's say this is mu, this is plus minus 1 mu. So this is plus 1 mu, and this is minus 1. This is plus 2, this is minus 2, this is plus 3, this is minus 3. So this is what we call the histogram analysis of a system. When you have a large population and you want to have a distribution of this population, so you normally, the histogram analysis is carried out for the system analysis. Secondly, if you want to have for quality purpose, if you have a product, let's say there are different defects in the system. Okay, let's say defects because of the size, defects because of the dimension, because of the material, defects because of the painting, defects because of the, let's say, the part missing, and you have a different, and there is a number of product. So you can be having a very good analysis, like say that how many number or how many damages or defects is because of the size, how many defects are because of the material, how many defects are because of the painting, how many defects is because of the paint, the surface finish, and etc. So this is a very good analysis of the histogram analysis. So this is one quality tool is also used in the quality system analysis, to a system to analyze the system of defects, or analyze the system variability, or analyze the system, the quality analysis as well. Number two, this is how the histogram analysis, like for example, you can have a very good normal distribution. The normal distribution means that the average is just like populated, while the minimum is less populated, while the maximum is less populated. अगर आपका for example CGPA 2 something के दरमियान है, तो आपका एवरेज यहाँ पे ज्यादा लाई करेगा, और आपका नहीं, इस तरह नहीं हो सकता कि सारे स्टूडेंट एफ ले, या ये भी नहीं हो सकता कि सारे स्टूडेंट ए ले. इसका कुछ ए होंगे, कुछ ए नेगेटिव होंगे, कुछ ए just like a B plus B negative, इस तरह. तो ये B plus B negative around to C plus C negative, that will be a populated area, and then D and F, that will be less number of the students as well. So this is a natural variation in the system. कि आपके ना कुछ ज़्यादा, ये नहीं हो सकता कि आपके पॉपुलेशन में सारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हाइटेड हो, और ये भी नहीं हो सकता कि सारे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा लो हाइटेड हो. अगर आपका पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हाइटेड हो, तो ये फिर एक साइड पे स्क्यूड हो जाएगा, या इस तरफ हो तो ये इस साइड पे स्क्यूड हो जाएगा. तो आपका जो पॉपुलेशन जो बैलेंस है वो शिफ्ट हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. फिर ना, या ये भी नहीं हो सकता कि सारे सोसाइटी में सारे लोग गरीब हो, या सारे लोग जो है वो मालदार हो. इसमें कुछ मिडिल क्लास होंगे, कुछ पॉवर्टी लाइन के बिलो होंगे, कुछ अबाव द वेरी बहुत ज़्यादा मालदार. तो इस तरह ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी सोसाइटी में ओवरऑल, और आप इसको नेचुरल वेरिएशन के तौर पे भी दे सकते हो. समझ आ रही बेटा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. फ्लो चार्ट. लेट्स से अगर आपका फॉर एग्जांपल आपके जो मशीन है, लेट्स से आपके मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ये डिफरेंट मशीन आपके वर्कशॉप में लगे हुए हैं. ठीक है बेटा? ये एक वर्कशॉप है जिसको आप कहते हैं मशीन शॉप. ठीक है, फिर है आपका जो है पेंट शॉप. इसमें 2 मशीन लगी हुई है. ठीक है बेटा? इसने
फॉर एग्जांपल आपका अगर प्रोडक्ट यहाँ पे एंटर होता है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट की फिनिश फॉर्म के तौर पे प्रोडक्ट एंटर एंड प्रोडक्ट आउट। अब इस प्रोडक्ट ने मशीन 1 पे सबसे पहले जाना है, यहाँ पे इसने 1 मिनट गुजार के फिर इस पे प्रोसेस होना है, फिर इसने जाना है मशीन 2 पे, ठीक है बेटा, मशीन 3 पे, सॉरी मशीन 3 पे आपने 2 मिनट्स गुजार के फिर इस पे प्रोसेस होना है। मशीन 2 से 3 से फिर ये आना है मशीन 2 पे, मशीन 2 पे इसने 1.3 मिनट गुजार के फिर इस पे फिनिश होना है, और फिर यहाँ पे इसने यहाँ से निकल के यहाँ पे ये जो ट्रेवलिंग है ये टाइम भी इसने काउंट लेना है, और आउट ऑफ 3 मिनट में, एक मिनट बेटा, ओके बेटा, समझ आ रही है? अच्छा, इसने यहाँ पे फिर ये 3 मिनट का ट्रेवलिंग करके फिर इसने पेंट शॉप में एंटर होना है, और पेंट शॉप में ये यहाँ पे पेंट 1 मशीन शॉप में, पेंट 2 ये दूसरा शॉप है, इस पे आपने टोटल यहाँ पे 5 मिनट में आपने फिर यहाँ पे एंटर होना है। तो इसने टोटल टाइम कितना लेना है? 1 मिनट प्लस 2 मिनट, 3 मिनट प्लस 1.3 मिनट, कितना लेना है बेटा? टोटल कितना टाइम हो गया? 4.3 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4.5 मिनट, और अगर फॉर एग्जांपल इसने यहाँ से एंटर होने में 0.2 मिनट लेने हैं, यहाँ से फिर इसने लेने हैं 0.5 मिनट, तो ये भी साथ एंटर होना है, ठीक है बेटा, यहाँ से फिर 3 मिनट लेना है इसने, ठीक है बेटा। तो ये सारा यहाँ पे लेट से टोटल 10 मिनट का ड्यूरेशन है। अब इसको आपने प्रोसेस फ्लो चार्ट के तौर पे दिखाना है। प्रोसेस फ्लो चार्ट किस तरह है कि आपने इस पे एक्टिविटी शो करनी है, एक्टिविटी में आपने कोई डिसीजन करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका मशीन 1 और मशीन 1 पे अगर फॉर एग्जांपल आपका काम ख़त्म हुआ हो, ठीक है बेटा, तो आपने फिर अगर आपने मशीन 2 पे काम ख़त्म किए तो आपने मशीन 2 पे जाना है, मशीन 1 पे अगर काम ख़त्म हुआ है तो आपने मशीन 2 पे जाना है। अगर मशीन 2 पे काम नहीं ख़त्म नो, तो फिर आपने क्या करना है, तो ये एक्टिविटी आपने इस तरह शो कर दी है, ठीक है बेटा। इस तरह एग्जैक्टली आपने एक फ्लो चार्ट दिखाना है, ठीक है बेटा। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको व्हेन यू आर वर्किंग एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर और इफ यू आर वर्किंग एज अ मशीन और फ्लोर सुपरवाइजर, सो यू जस्ट लुक एट दिस फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम कि आपका प्रोडक्ट जो है मटेरियल किस तरह फ्लो करता है, ठीक है बेटा। इस तरह आपने अगर फॉर एग्जांपल इसके मुख्तलिफ प्रोसेस फ्लो चार्ट में आपके सैम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन का सैंपल ये है, अगर आपका ये सैंपल तो इसका मतलब कि इंस्पेक्शन हो रही है, अगर आपका जो एरो सिग्नल है तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, अगर आपका ये वाला है तो इसका मतलब डिले है, ये है तो इसका मतलब स्टोरेज है। इस तरह ये कि फॉर एग्जांपल आप इस, जैसे हमने ये कहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका फिर डिले होगा, इस पर वेट करेगा, यहाँ पे ये स्टोर होगा और यहाँ फिर आके फिर स्टोर होगा, तो इस पर आपने मुख्तलिफ, अगर मैं इसको इस तरह जाऊँ, इसको इस तरह डिपेंड करूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑपरेशन होगा मशीन 1 पे, फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मशीन 3 पे ये इंस्पेक्शन होगी इसकी, मशीन 3 से फिर ट्रांसपोर्ट होगा इस पे, फिर ये वेट करेगा, ठीक है, फिर इस तरह ये पूरा प्रोसेस, और एंड पे आपका ये जो है टाइम, ये 20 मिनट, 30 मिनट, 360 मिनट, 15, ये सारा डिस्टेंस कि इसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है बेटा। तो इस तरह आपने एक प्रोसेस फ्लो चार्ट डायग्राम बनानी है सिस्टम, ठीक है। Yes, sir. Okay, yes, sir. जी बेटा,
सर ये सैंपल इसी तरह होंगे कि हम अपने हिसाब से दे सकते हैं? जी ये सैंपल जो दिए इन्होंने, हाँ, ये इसके ऑपरेशन के स्टैंडर्डाइज लिए सैंपल है बेटा। सही है। हम अपने हिसाब से नहीं दे सकते? नहीं नहीं नहीं, इसके स्टैंडर्डाइज सैंपल है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये स्टैंडर्डाइज ना हो तो फिर आपका अपना सैंपल, फॉर एग्जांपल आपका, आपने अगर एरो यूज किया हुआ है, ठीक है बेटा, इस तरह, और आपने इसको एज अ सैंपल कोऑपरेशन के तौर पे यूज किया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनली इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, तो लोग इसको ट्रांसपोर्टेशन, तो फिर आपका जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। या आपने पहले इसको, अगर आपने नहीं है तो फिर बेहतर तो ये कि आप इंटरनेशनल सैंपल जो स्टैंडर्डाइज सैंपल है वही यूज करें। अगर नहीं है तो फिर आपने पहले डिफाइन करने कि इस सैंपल का मतलब क्या है। आपने वेजियो देखो, MS वेजियो, इस तरह MS वर्ड है, MS एक्सेल है, इस तरह MS वेजियो एक सॉफ्टवेयर है। नो सर। ठीक है बेटा, इसको आप देख लें, इसमें ये सारे प्रोसेस वगैरह ये सारी चीजें जो है वो इस तरह डिफाइन होती हैं। ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा, और इस तरह ये एक प्रोसेस फ्लो चार्ट डायग्राम है। इसके अलावा एक और जो टूल है, इसको हम कहते हैं चेक शीट। लेट्स से आप मुख्तलिफ किस्म के, लेट्स से आप एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर आपका जो है 24 आवर शिफ्ट को आप मैनेज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, एज ए इंजीनियर आप इसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपके इस 24 आवर में 6 शिफ्ट है या 4 शिफ्ट है, लेट्स से 6 आवर्स की, 6 आवर, ये 4 शिफ्ट है 6 आवर्स की। इसको आप कहते हैं मॉर्निंग, इसको आप कहते हो इवनिंग, इसको आप कहते हैं नाइट शिफ्ट, और इसको आप कहते हैं आफ्टरनून, सॉरी आफ्टरनून, इवनिंग, मिडनाइट। जी, और इसको आप कहते हैं नाइट मिडनाइट। शिफ्ट। ठीक है बेटा, अब आपने फॉर एग्जांपल इसमें दिखाना है कि इसमें कितनी डिफेक्ट्स हो गई, इसमें कितने डिफेक्ट्स आ गए, इसमें कितने डिफेक्ट्स आ गए, तो आप इसको मैनेज करें कि इसमें 1 2 3 1 2 1 3 2 4 1 2 3 4 5, सॉरी 1 ये 4 और इसके 5 और फिर 6, इस तरह। ठीक है बेटा, तो टोटल 24 आवर में कितने आपके डिफेक्ट्स आ गए, 3 5 9 और 6, 15 आपके टोटल डिफेक्ट्स। ठीक है बेटा, इस तरह ये चेक शीट है। या आप इसको मुख्तलिफ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह कहते हैं कि ये जो है मटेरियल की वजह से कितने डिफेक्ट्स है, साइज की वजह से कितनी डिफेक्ट्स है, या तो साइज और मटेरियल की वजह से 2 है, इस तरह ये आप मुख्तलिफ इस तरह इसको बना सकते। जिस तरह ये है, इसको आप साइज कह दो, इसको आप मटेरियल कह दो, इसको आप पेंटिंग कह दो, इसको आप कहते हैं सरफेस फिनिश कह दो। तो ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स है, और ये नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं पर शिफ्ट, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। इस तरह आपका ये चेक शीट है। इस तरह ये अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका आप पैकेज कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक है बेटा, पैकेजिंग कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एक टीवी सेट है मॉडल 1013, इसमें आपकी जो है टोटल इंटीग्रेटेड आईसी जो है, टोटल आईसी इसमें 4, या ये जो है 4 कैपेसिटर इसमें कितने लगते हैं ये आप देख लें, कैपेसिटर, रजिस्टर इसमें कितने लगते हैं, ट्रांसफार्मर इसमें कितने, कमांड्स CRT उसमें कितने लगते हैं, कमांड उसमें नहीं है, 0 है। तो आपका पूरा पैकेज जब आप पैकेज कर दे तो आपने फिर ये चीज़ें चेक शीट चेक करना कि वाकई ये चीज़ें पूरी हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप इसको दोबारा क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल के तौर पर या क्वालिटी चेक्स जब आप करते हो तो इसको फिर आप आइडेंटिफाई करते हो इन चीज़ों को। ठीक है बेटा,
सर इसमें ये स्लैश निशान किस लिए इस्तेमाल किया? क्या चीज बेटा? ये स्लैश वाले निशान, हाँ, स्लैश वाले निशान दे अच्छा, कैपेसिटर पे जो। स्टेज वाला इस तरह कि आपने इसका स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है कि 1 2 3 और जब आप 5 कर देते तो फिर इसको आप इस तरह डालते हैं, फिर 1 2 3 4 फिर इस तरह करते हैं, तो ये 10 हो गए टोटल। ठीक है बेटा? ओके सर। अच्छा, कॉज इन इफेक्ट डायग्राम, इसको आप फिश बोन डायग्राम भी कहते हो और इसको आप इशिकावा डायग्राम भी कहते हो। फिश बोन डायग्राम का क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका एक क्वालिटी प्रॉब्लम है। क्वालिटी प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने लेस सीजीपीए लिए, या आप कहते हैं पुअर सीजीपीए, ये एक प्रॉब्लम है। अब इसकी क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रीजंस हैं, काजिस क्या है, तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे आप काजिस डिस्क्राइब and right side पे you describe the effect of these causes. Okay, for example, if these are the causes, so what is the effect of these causes? समझ आ रही बेटा? यस सर। अच्छा, फिर आप ये जो इफेक्ट है और इसके कौन कौन से causes हैं, इस तरह। ठीक है बेटा? इस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी प्रॉब्लम, मशीन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट मींस बिकॉज द मशीन माइट बी आउट ऑफ एडजस्टमेंट, बिकॉज दिस माइट बी सम टूलिंग प्रॉब्लम, द मशीन माइट बी ओल्ड और वर्न आउट। अगर उसकी फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन एरर है, तो ह्यूमन माइट हैव अ पुअर सुपरविजन, मे हैव लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मे हैव इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, कि उसकी वो ट्रेनिंग उस तरह नहीं है। मेजरमेंट की वजह से अगर कोई उसकी रीजन आ रही है, ठीक है बेटा, तो ये बिकॉज माइट यू आर यूजिंग अ वेरी faulty testing equipment, you might use an incorrect specification, you might use improper method. अगर आपका प्रोसेस की वजह से कोई मसला है, तो इसका मतलब है कि डिफिशिएंसी है, पुअर डिजाइन प्रोसेस है, इनइफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट है। अगर आपके मटेरियल की वजह से कोई प्रॉब्लम, तो ये कहते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग प्रॉब्लम सही नहीं है, नॉट स्पेसिफिकेशन मटेरियल है, डिफेक्टिव मटेरियल है। ठीक है बेटा? इन्वायरमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है कि इनएक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल है, कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, डस्ट है, वहाँ पे डर्ट है, इसकी वजह से कंट्रोल, तो ये इसके काजेस है। और इसकी काजेस का इफेक्ट क्या है कि आपका जो क्वालिटी प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ किस्म के क्वालिटी प्रॉब्लम के डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये डिफेक्ट या तो मशीन की वजह से हो सकते हैं, या ह्यूमन की वजह से, या मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट है तो फिर मेजरमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि किस वजह से आ सकता है मेजरमेंट प्रॉब्लम। ठीक है बेटा? यस सर। ये एग्जैक्टली इस तरह है कि फिश आप जब बनाते हो फिश, ठीक है बेटा, इस तरह, तो फिश के जो बोन्स है वो इस तरह डिफाइन होते हैं। ठीक है बेटा? तो ये एग्जैक्टली वही फिश बोन डायग्राम इसको इस तरह इसलिए बोलते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम ये वही चीज है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ये फिश स्कैटर डायग्राम, अगर फॉर एग्जांपल आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, आपके पास बहुत डेटा बहुत ज्यादा है, तो आप इसको नंबर कह देते हो, और यहाँ पे आपका जो है रीजन, या आप इसको क्वांटिटी 1 या क्वांटिटी 2। ठीक है बेटा? जैसे तो ये बहुत ज्यादा, तो आपका ट्रेंड आपको दिखाता है कि आपका ट्रेंड इस तरह जा रहा होता है। या जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है आजकल जो कोविड-19 की जो स्टैटिस्टिक्स है, तो ये क्या है, ये कि नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये नंबर ऑफ पेशेंट, और यहाँ पे डेली या मंथ या वीक के हिसाब से कितने के, वीक 1 में ये है, वीक 2 में इस तरह, या इस तरह ऊपर जा रहा है। ठीक है? तो इसको आप स्कैटर डायग्राम में भी शो कर सकते हो, इसको आप हिस्टोग्राम में भी। लेकिन अगर आपका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेटा बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको आप इस तरह ट्रेंड के तौर पे दिखाते हो। ठीक है बेटा? जिस तरह आपका एक्स एंड वाई डायग्राम है,
कि आप y पे कुछ और क्वांटिटी शो करते हो, x पे कुछ और क्वांटिटी शो करते हो, इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट करते हो तो आपको पता चलता है कि किसका ट्रेंड किस तरह है। ठीक है, Okay, sir. रन चार्ट। ठीक है बेटा, आपका ये जो है कि अगर आप ये आपका टारगेट लाइन है, ठीक है बेटा, ये आपका टारगेट लाइन है 2, लेट से आपका डेटा है ये आपका शाफ्ट साइज, लेट से अगर आप ये शाफ्ट डिजाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इसका जो साइज है लेट से 2 प्लस माइनस 0.3, इसका मतलब है कि ये 2 है और ये मैक्सिमम जो है आपका ये हो गया 2.3 और मिनिमम आपका 1.7 हो गया, तो ये आपका 2.3 है और मिनिमम आपका 1.7 है। तो इन दोनों के दरमियान आपका जो डेटा है यहाँ ना ही होना चाहिए, तो ये आपका अपर कंट्रोल लिमिट है और ये आपका लोअर कंट्रोल लिमिट है। इसको फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह, ये रन चार्ट जो है। ठीक है बेटा, Okay, sir. ठीक है, सर ये ये फिश प्रोसेस डायग्राम कंट्रोल में चार्ट सिर्फ एग्जैक्टली इस डिटेल्स तरह है। बताने सर। यहाँ तक समझ आ गई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. आप इस तरह कर लो, एक 5 मिनट ब्रेक ले लो, मैं आता हूँ तो फिर एक और एक दूसरा जो टूल है, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको फिर करते हैं, तो फिर आपकी क्लास आज के लिए फिर खत्म होगी। ठीक है बेटा, जाना नहीं है, वो जरूरी है वो क्लास, वो प्रॉब्लम। Okay, sir. Okay. ठीक है, 5 to 10 मिनट, आई विल बी बैक। ये 9:50 10 बजे है तो मैं 10:05 पे आऊंगा। सर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो। रिकॉर्डिंग को नहीं स्टॉप करते, बस आप इसको इधर ही रहने दें। ठीक है, Okay. फिर ज्यादा इधर उधर बकवास नहीं करनी बीच में। ओके सर, हम यही है बस।
Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी हाँ बच्चे वाह जी ओके Sir. अभी तक कोई प्रॉब्लम कोई मसला जी No, sir. No, sir. ओके ठीक है कोई कमेंट्स में कोई क्वेश्चन वगैरह किसी ने कमेंट्स में कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा तो ओके लेट्स finish with this TQM lecture now. Finish. And now we're going toward the Pareto analysis. Okay. आपके ख्याल में क्या चीज़ है Pareto analysis? जी बेटा Anybody? No idea, sir. कोई गेस चार्ट होगा सर। चार्ट होगा किस Decision चीज़ के making. बारे में थोड़ा सा इंजीनियरिंग जवाब दे यार क्या आप टेक्निकल कोई इंजीनियरिंग सेंस के साथ चार्ट होगा वो तो होगा चार्ट तो चार्ट किस बेस पे होगा आपके ख्याल में सर ये स्टेटिकल डेटा गैदरिंग के रिलेटेड कुछ होगा जी नो वन ओके basically Pareto was a actual Pareto was an economist, Italian economist. He was analyzing the wealth distribution in the Italian economy, Italian society. And after his analysis, he came to conclusion that a very limited number of people, a very limited number of people controls the high portion of the Italian economy, wealth. समझ आ रही बेटा? Yes, sir. Yes, sir. And there is a very huge number of population which have a less number of wealth distribution. अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा? क्या बस इसका क्या मतलब है? सर लिमिटेड नंबर में वर्क करेंगे Okay, if very, for example, if very limited number of people control the overall economy of the Italian society, Italian economy. So what do you need to do? You have to control the whole people, or you just to control that few people? Few whole people. Few people. So what that few people means? They are very, like what we say, vital. They are very vital. They are very few in number, but they are very vital. समझ आ रही बेटा? Yes, sir. जी सर And the rest of the people who doesn't have a wealth
they are huge in number, but they don't have any authority, or they don't have any significance. So what that they are many in number, but they are very trivial. So there are vital few and there are trivial many in the system. Okay. तो फिर इसको फिर he came to conclusion, the Pareto came to conclusion that only 20% of the people controlling 80% of the wealth, Italian wealth in the society, and 80% of the population have only 20% of the wealth in the Italian economy. So that 20% of people who have 80% portion of the wealth have a very vital, they are very few in number, but they are very vital for the Italian economy. And the 80% people who have 20% population, 20% wealth distribution, but they are very many in number, but they are not vital, they are trivial for that economy. समझ आ रहे बेटा? तो इसको फिर हमने इसको 20-80-20 रूल भी कह दिए. अच्छा, it is the Pareto analysis is generally a tool to specify the priorities of a system. Like for example, हम इसको क्वालिटी में किस तरह यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने डैमेजेस को इफ यू वांट टू स्टडी द डिफेक्ट्स, और वो डिफेक्ट्स ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 150 number of damages or defects has been recorded in the last 24 hours. ठीक है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट 24 आवर में जो कोविड-19 के सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस है, लेट्स से वो पेशावर में रिकॉर्ड हुए द होल केपी. तो आपके लिए इस केपी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट इस वक्त है, जो फैक्टर है, जो रिस्की फैक्टर है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? Peshawar. पेशावर. अगर केपी में लास्ट 24 आवर में लेट्स से 500 केसेस रिकॉर्ड हुए, लेट्स से, और उसमें 135 जो है वो सिर्फ सवात में है, और जो 465 या 365 वो पूरे केपी में. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला या सबसे ज्यादा हाई रिस्क या पॉजिटिविटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ बेटा? Smart. सवात. तो आपने किस पे ज्यादा फोकस करना है? सवात पे. तो अपनी प्रायोरिटीज को आपने स्पेसिफाई कर दिया. ठीक है बेटा? ठीक है. इस तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके 150 डैमेजेस है या डिफेक्ट्स है क्वालिटी प्रोडक्ट में, और 150 में लेट्स से 35 या 70% जो डिफेक्ट्स है वो सिर्फ मटेरियल की वजह से आ रहे हैं, तो आपके लिए स्पेसिफाई प्रायोरिटीज क्या हो गई बेटा? आपने किस पे ज्यादा फोकस करना है फिर? मटेरियल पे सर. मटेरियल पे. अगर 70 to 60% या 60 to 70% डिफेक्ट जो है वो लेट्स से साइजेस की वजह से आ रहे हैं, तो आपने क्या चीज इंश्योर करानी है कि आपकी जो मेजरमेंट सिस्टम है वो सही हो. ठीक है बेटा? So this is a tool to specify the priorities. Which job have to be done earlier than the other? Which reject must be solved first? Which product gave us the biggest revenue? 80-20 rule भी इसको कहते हो कि फॉर एग्जांपल 80% रिजल्ट. अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है कि फॉर एग्जांपल आपके 3 सेल्समैन है, लेट्स से आपने 10 सेल्स पर्सन रखे हुए. इफ यू हैव हायर 10 सेल पर्सन to sell, to marketing, to do marketing of your product, and let's say जो आपका, और इसको आपने मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रिक्ट दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. लेट्स से आपका जो 80% सेल हो रही है, 80% वो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है, और जो 20% सेल है वो इन 8 डिस्ट्रिक्ट में हो रही है. ठीक है बेटा? तो आपके लिए ज्यादा जो एफर्ट्स है वो इन 2, आपका जो 80% रिजल्ट है
वो इन दो सेल पर्सन की एफर्ट्स की वजह से आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो इसको कहते हैं कि 80% रिजल्ट इज अबाउट 20% एफर्ट्स। ठीक है बेटा, जैसे जैसे आउट ऑफ 10 सेल पर्सन ओनली 2 सेल पर्सन इज कंट्रीब्यूटिंग टू 80% ऑफ योर इकोनॉमी और योर सेल 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 प्रोडक्ट। ओके, तो इसको फिर हम कहते हैं 80-20 रूल्स। ठीक है बेटा, सो परीटो एनालिसिस एज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक and decision making used for selection of a limited number of tasks that produce significant overall effect. It used the Pareto principle, also known as 80-20 rule, the idea that by doing 20% of the work, you can generate 80% of the benefit of doing the entire job. This technique is also called the vital few and the trivial many. So the vital few is about this 20% work and trivial many is about this 80%. आपके लिए अब ये जो 2 है ये vital few है और trivial many के लिए जो 80% रिजल्ट के लिए ये बहुत ज्यादा 2% आर मोर इम्पोर्टेंट। ओके बेटा, Yes, sir. टेक क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर एग्जांपल। अब इसको मैं लेट्स से 80-20 rule can apply 80% of the customer complaint arise from 20% of your product and services. Let's say अगर आप मार्केट में let's say 10 प्रोडक्ट सप्लाई करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्रोडक्ट आपके मार्केट में इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन आपने जब आपने कंप्लेंट रजिस्टर की, कंप्लेंट को एनालाइज किया, तो कंप्लेंट इज ओनली अबाउट प्रोडक्ट नंबर 4 एंड अबाउट प्रोडक्ट नंबर 7। तो इन दो प्रोडक्ट की वजह से आपके 80% जो कंप्लेंट है आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपने क्या किया कि आपके 80% ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट अराइज फ्रॉम 20% ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो आपने इन दो प्रोडक्ट पे फोकस करना है। समझ आ रही बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Or 80% of the delays in the schedule result from 20% of the possible causes of delays. 20% of your product can service accounts for your 80% of your profit. Let's say अगर आप 80% 10 प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करें, लेकिन आपकी जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है उसमें 80% ऑफ द प्रॉफिट जो है वो इन दो प्रोडक्ट्स की वजह से आ रहा है। तो आपकी इन 10 प्रोडक्ट में 20% ये जो दो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू 80% ऑफ योर प्रॉफिट। और 20% ऑफ योर सेल फोर्स प्रोड्यूसेस 80% ऑफ योर कंपनी रेवेन्यू, जो अभी हमने बैक साइड पे बात की। और 20% ऑफ योर सिस्टम डिफेक्ट काजेस 80% ऑफ इट्स प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉमन एग्जांपल बता दूं, जब हम क्लास में टीचिंग का, तो कभी कभार जब हम फेस टू फेस क्लासेस लेते थे तो उसमें एक या दो लड़के से जो ज्यादा शोर मचाते थे, तो उसकी वजह से सारा जो क्लास था वो डिस्टर्ब होता था। शरारती लड़के तो होते, उनकी अपनी एक वो शरारत का अपना एक हुस्न है क्लास में। ठीक है, लेकिन जब आप उन दो लड़कों को बाहर निकाल दो तो पूरा क्लास जो है वो खामोश हो जाता है। इस तरह है कि नहीं है? बिल्कुल सर, यही। जी बेटा, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हैव यू एक्सपीरियंस दिस वन? जी सर। Many Yes, times. sir. यस सर। हाँ, मेनी टाइम्स। सो वो जो दो दो स्टूडेंट है वो क्या है बेटा? वो वाइटल फ्यू है और द ट्रिवियल मैनी। ठीक है बेटा? अच्छा, लेट्स अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो फिर आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेप वाइज मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। ठीक है बेटा, तो यू नीड टू हैव अ गुड अटेंशन टू दिस वन।
अच्छा, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। ठीक है, मैं कुछ आपसे कुछ कैलकुलेशन भी करवाऊंगा, तो आप जरा थोड़ा सा इसको, लेट्स से आपका, आप एक कंपनी है और आपके पास कुछ अपने डिफेक्ट्स, कंप्लेंट आ रहे हैं, कंप्लेंट अबाउट योर प्रोडक्ट्स, कि आपके प्रोडक्ट मुख्तलिफ किस्म के, डिफरेंट किस्म के कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो यू जस्ट वांट टू एनालाइज कि मेरे ज्यादा कंप्लेंट किस चीज की वजह, ताकि उस प्रॉब्लम को, फॉर एग्जांपल आपके 5-6 प्रॉब्लम ज्यादा रिपोर्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 4-5-6 डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल एक तो आपका जो प्रोडक्ट है वो है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी के इश्यूज हैं, एक ये कंप्लेंट आ रही है। नंबर 2, एक उसमें ये कि ये बहुत ज़्यादा ब्रेकेज है, मतलब ये कि इसका मटेरियल सही नहीं है, मटेरियल के इशू आ रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3, उसके समबडी कंप्लेंट कि इसका जो सरफेस पैकेजिंग सही नहीं है। ठीक है बेटा। नंबर 4 कि इसकी जो सरफेस, समबडी ने कहा कि इसकी जो सरफेस फिनिश है वो सही नहीं है। किसी ने कंप्लेंट की है कि इसका जो मुख्तलिफ, जो मैंने साइज जो ऑर्डर किया है वो उस डायमेंशन की नहीं, तो साइज या स्लैश आप इसको डायमेंशन भी कहते हो। ठीक है बेटा। या इसको आप कहते हैं कि इसमें डिले बहुत ज़्यादा है। और किसी ने मुख्तलिफ किस्म के मिसलिनियस कुछ प्रॉब्लम डिफाइन की। ठीक है बेटा। तो आपके पास कंप्लेंट क्या चीज़ आ रहे हैं? रिलायबिलिटी के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, मटेरियल के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, पैकेजिंग के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, सरफेस फिनिश के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, डायमेंशन के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, डिलेस के आ रहे हैं, और क्या आ रहे हैं बेटा, कुछ कंबाइन किस्म के मिसलिनियस मुख्तलिफ किस्म के नवीयत के कुछ और आ रहे हैं। ठीक है बेटा। अब मैं एज अ कंपनी, एज अ मैनेजर, आई वांट टू गेट आउट, आई वांट टू एनालाइज, आई नीड टू नो कि मेरे इन सब को तो मैंने सॉर्ट आउट करना है, लेकिन इसमें कौन से पहले सॉर्ट आउट करूं, उनकी प्रायोरिटीज को मैंने सेट करना है। तो उस प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए जिसके बेस पे मैं एनालिसिस करूं, ताकि कौन सा कंप्लेंट बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट, कौन सा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट, कि फॉर एग्जांपल मेरे शायद 80% कंप्लेंट जो हो, जो शायद 80% कंप्लेंट वो सिर्फ 1 या 2 प्रॉब्लम की वजह से हो, तो मैंने उन 2 या 1 प्रॉब्लम को पहले देखना है, ताकि मेरे 80% जो प्रॉब्लम है, कंप्लेंट है, वो रिड्यूस हो सके। ठीक है बेटा, समझ आ रही है इसकी? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो फिर मैं इसको इस तरह करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। ठीक है बेटा। परेटो एनालिसिस को लेट्स से सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, मैं सिर्फ आपकी उसके लिए मैं सिर्फ इनको हटा देता हूं। ठीक है बेटा। मैं सिर्फ 5 तक जाता हूं। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? 5 तक मैं जा रहा हूं और 5 को मैं मिसलिनियस कर देता हूं। ठीक है बेटा। अच्छा, प्रॉब्लम्स या आप इसको डिफेक्ट्स, लेट्स से एक क्या पहले क्या था बेटा, दोबारा बोले बेटा, क्या बस रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी। नंबर 2 मटीरियल। नंबर 3 पैकेजिंग। आप इसको अपने साथ नोट कर ले बेटा, पैकेजिंग। और सरफेस फिनिश, या आप सरफेस फिनिश को मैं चलो रफनेस कह देता हूं। ठीक है बेटा, रफनेस।
और इसको मैं कहता हूँ कि मिसलिनियस, मुख्तलिफ किस्म के। फॉर एग्जांपल कुछ सर पे कुछ डायमेंशन की वजह से, कुछ लूज पार्ट्स की वजह से, कुछ मुख्तलिफ किस्म के। अच्छा, इसको आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी, या आप इसको कहते हैं नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। लेट्स से रिलायबिलिटी के 20 है कंप्लेंट आए थे, मटेरियल के लेट्स से आए थे 10, पैकेजिंग के आए थे लेट्स से 35, ठीक है बेटा। रफनेस के लेट्स से आए थे 7, और मिसलिनियस के लेट्स से आए थे 13, ठीक है बेटा, समझ आ रही है? ये हमारे पास डेटा था जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया नहीं था, यहाँ पे, लेकिन ये कंप्लेंट को मैंने फिर नंबर वाइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है बेटा। ये आपके पास डेटा है। तो आपने अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि आपने इसको परेटो एनालिसिस यूज करके इसमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो कंप्लेंट है इसको आपने प्रायोरिटाइज करना है कि मैंने पहले कौन से प्रॉब्लम या डिफेक्ट्स को या कंप्लेंट को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए सबसे जो पहला टेस्ट है, स्टेप नंबर 1 है, इसको तो आपने ऑर्डर में लिखना है, सेट इन ऑर्डर। या आप इसको कहते हैं री ऑर्डर। री ऑर्डर का क्या मतलब है? चले मैं इसको इधर री ऑर्डर करता हूं, ठीक है बेटा। इसको सीरियल नंबर 1, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले प्रॉब्लम वो कौन से हैं? वो पैकेजिंग के, ठीक है बेटा। नंबर 1 पैकेजिंग, फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते 35। दूसरे नंबर पे कौन से बेटा? रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी। कौन से परसेंट बेटा, कितने? 20 20। नंबर 3 मिसलिनियस मिसलिनियस, चाहे ज्यादा हो कि कम हो, ये आपने एंड पे लिखना है क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स है, ठीक है बेटा। यस फिर आप क्या आ रहे हैं, मटेरियल क्या आ रहे हैं? दस। रफनेस 7, और मिसलिनियस क्या है? 13, ठीक है बेटा। अच्छा, टोटल ये कितने हो गए बेटा? 35 प्लस 20 85 हाँ, टोटल कितने हो गए बेटा? 85 85। यस सर 30 प्लस 35 ये कितने हो गए बेटा? 65 प्लस 7 65 और 20 ये 75 85, ठीक है बेटा। अच्छा, स्टेप नंबर 4 क्या है बेटा? नंबर 2 सॉरी ना, ये ऑर्डर लिख दिया। नंबर 2 क्या है कि इसका हर एक को आपने इंडिविजुअल परसेंटेज निकाल ली है,
ये तो 30 आउट ऑफ, ये तो कितना हो गया बेटा? शाबाश। 41.17. 41.17। 17. शाबाश। इसका 23.52. एक मिनट बेटा, एक मिनट, सबर सबर सबर। इसको मैं कलर जरा चेंज करूं ताकि आपको ये क्या बेटा 41.17 17. ठीक है। दूसरा बेटा क्या बस 23.52. 23.52 क्या बस 11.76. 11.76 क्या बस 8.23. 8.23 और ये 15.29. कितना बेटा 15.29. 15.29। ये 100 होनी चाहिए बेटा सारा, 100 होनी चाहिए ना ये वाला। जी सर जी। Yes sir. ठीक है बेटा, लेकिन इसको चलो मैं 100 नहीं लिखता, सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपने क्या करना है बेटा, आपने निकालनी है एक कम्युलेटिव परसेंटेज। कम्युलेटिव परसेंटेज का क्या मतलब है कि ये जो है ये तो 41.17 आ रहा है, ठीक है बेटा। अब इसके लिए एक कम्युलेटिव परसेंटेज इसके साथ इसको 8 कर दो, कितना हो गया बेटा 64.69. 64.69। 69. ठीक है, फिर इसके साथ ये वाला 8 कर दो, शाबाश। इसके साथ अब ये वाला 8 कर दो, 76.45. 76.45 प्लस दिस वन 84.68. 84.68 प्लस दिस वन 99.97. तो ये 100 होनी चाहिए। अगर आप इसको एग्जैक्टली तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है बेटा। समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes sir. यस सर। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। ओके, स्टेप नंबर 4 क्या है कि फिर आपने ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, आपने फिर ठीक है बेटा। अच्छा, ये आपने इस तरह आपने लिखना है डिफेक्ट्स, और इस पे आपने लिखना है, या आप इस पे इंडिविजुअल परसेंटेज, या आपका जो भी है, जिस तरह भी आपका जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है, जिस तरह ये वाली है, ये आप इसको ये वाला ऐड करते हो,
यानी ये वाला ऐड करते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है बेटा, ठीक है, जिस तरह भी आप करते हो। लेकिन लेट से मैं इस पे, चलो ये फ्रीक्वेंसी लगा, फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। नंबर, अच्छा 1 2 3 4 5 और ये 0 से लेके 85 तक है, तो टोटल 85 है। लेकिन ये लेंथ, हाइट और ये हाइट आपस में सेम होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छा पहला कौन सा है बेटा? 1 नंबर 35 है। तो ये अगर मैं यहां से ले लूं, यहां तक इसको कर दूं लेट से 50, तो ये मेरा हो गया 25 और लेट से ये हो गया आपका 75 लेट से। ठीक है बेटा, 75 कर दूं। यस सर। 0 25 50 75। अच्छा अब आ जाओ बेटा 35 पे। 35 यही होगा कहीं। ये हो गया 35 पहला वाला। दूसरे वाला बेटा क्या है? दूसरा दूसरा कितना बेटा? 20 20 20। 20, यही कहीं होगा बेटा। तीसरा 13 बस, हाँ 13 13 10। 10 10 सर। 10, यही होगा, इधर ही होगा कहीं। और 7 7 और दूसरा क्या है बेटा? 15 है, तो ये 10 है। 13 है, तो ये तकरीबन ये इधर ही होगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 13। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया लेट से 35। ठीक है बेटा, इस तरह हो गया। अब इस पे आपने लेना है एकमुलेटिव परसेंटेजेस खामखा। इस पे तो आप फ्रिक्वेंसी लो या इंडिविजुअल ले लो, आपकी कोई मसला नहीं है। लेकिन इस पे आपने एकमुलेटिव परसेंटेज, ये 0 से 100 के दरमियान होनी चाहिए। ये आपका हो गया 50, ये आपका हो गया 25, ये आपकी हो गई 75। ठीक है बेटा, ये 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 and ये। अब पहले वाले के लिए एकमुलेटिव परसेंटेजेस आप लेने कहाँ पे है बेटा? क्या बस
क्या है? 64.69. 41 पॉइंट 41.17। अच्छा, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ गया बेटा। 64.69 नहीं है सर, वो तो इंडिविजुअल परसेंटेज है। जी क्युमुलेटिव परसेंटेज सर जी 64.69 नहीं है सर ऊपर। पहले के लिए 41 पहला पहला पहले के लिए इंडिविजुअल और एक्युमुलेटिव सेम होंगे बेटा इस वाले की। ओके सर सॉरी। ठीक है बेटा, तो इसके लिए 41 ये वाला, दूसरे के लिए बेटा, दूसरा के लिए 64, तो ये तकरीबन इधर हो गए बेटा। ये पॉइंट है तीसरे के लिए बेटा, क्या बस जी क्युमुलेटिव परसेंटेज ये आपकी होगी 76, तो ये तकरीबन यहाँ आ गया। फोर्थ 84, तो अगर ये 80 है तो ये 84 होगा। और ये 100 यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये। ठीक है बेटा। अच्छा, नाउ यू जस्ट लाइंड अप मिक्स देम। और ये जाएगा इस तरह 100 के साथ इस तरह टच होगा। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है कि हमने किस तरह इसको, किस तरह ग्राफ को प्लॉट किया? यस सर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ। अब 80 जो एक्युमुलेटिव परसेंटेज पे हमारा 80%, ये 75 है, और अगर ये 80 है 80%, ये लाजमी है कि सर ये जो कर्व है सर वो स्मूथ बने। दोबारा बोले बेटा। सर ये जो कर्व बना है सर अभी सर ये जी लाजमी है कि सर ये स्मूथ हो, वो तो रैंडम भी हो सकता है ना नहीं नहीं सर? नहीं नहीं, मैंने तो ये तो स्मूथ तो होगा क्योंकि क्युमुलेटिव परसेंटेज तो ये जा इस तरह इंक्रीमेंटली वो इंक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको एनालाइज कर देना, इसको क्युमुलेटिव को, ये देखिए 41 64 70 ये ऐसे इंक्रीज हो, 100 को ये टच करेगा फिर। ओके सर। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका है ये, नेक्स्ट आपका है, इसको आपने कहा है 80%। 80% पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है इस तरह 80% पे, जिधर ये इस कर्व को टच करे इसको कहते हैं लॉरेंस कर्व, LORENZ, लॉरेंस कर्व। जहां पे इसको ये टच करे इससे आप वर्टिकली एक लाइन ड्रा करें, तो ये आपका जो है ये वाला, ये आपका 80% है और ये आपका 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये जो 3 प्रॉब्लम्स है ये आपकी प्रायोरिटी, ये आपका वाइटल फ्यू है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रिवियल मैनी। समझ आ रही है बेटा? अगर आप पैकेजिंग को
रिलायबिलिटी को और मटेरियल के इशू को कंट्रोल करे तो आपके तकरीबन 80% जो कंप्लेंट है वो तकरीबन खत्म हो जाएंगे। सर इस ठीक है बेटा? वाइटल 80% में सर 7 हाँ? इश्यूज जो सर रफनेस के हैं वो उसका भी कुछ हिस्सा आ रहा है। तो वो तो खैर मैंने थोड़ा सा मतलब मेरी ड्राइंग को थोड़ा सा आप कर लें, इस पे आप जिधर भी आ रहा है तो मतलब, लेकिन वो ज्यादा सिग्निफिकेंस किस चीजों का है आपने उस पे फोकस करना है। ये जरूरी नहीं है कि आप इनको छोड़ दें, आपने पहले इनको सॉर्ट आउट करें, ये आपकी प्रायोरिटी सेट। जब आप ये सॉर्ट आउट करें फिर आप इसकी, तो ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे चलेगा। जब आपके ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके कुछ और वाइटल प्यू आ जाएंगे, फिर वो इंपॉर्टेंट होंगे फिर आपके लिए। ठीक है बेटा जी? यस सर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? Yes. कोई प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. अच्छा, नाउ अब आप आ जाते हैं हम अपने उसकी तरफ, लेक्चर की तरफ। ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया, ये सारा यहाँ पे डिफाइन है कि किस तरह आपने वर्टिकल एक्सिस उस पर कितना परसेंटेज लिखना है, फिर आपने कम्युलेटिव परसेंटेज किस तरह लेना है। ठीक है बेटा? ये पूरा प्रोसीजर डिफरेंट स्टेप यहाँ पे सारा डिफाइन किया गया है। ठीक है बेटा? Okay, sir. Okay. यस सर। अच्छा, ये जो आपका है इस पे आपके कम्युलेटिव परसेंटेजेस है, ये आपके काउंट है, काउंट ऑफ एरर जो आप, ठीक है बेटा, आपका 80% यहाँ पे है, यहाँ पे लेख, तो ये जो आपकी है ये वाइटल फ्यू है और यहाँ पे क्या है, ट्रिवियल मैनी। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है जो बेड साइज की वजह से है, बेड मटेरियल है, रस्ट की वजह से, ये उसकी 10 नंबर आ गए, इसके ये 3 नंबर्स कैलकुलेट हुए, और एक डेबिट जो है या एक डिफेक्ट जो है वो किसकी वजह से, वो रस्ट की वजह से क्या क्या डिफेक्ट है या रिजेक्ट किया गया। अब इनको जब आप इंडिविजुअली आप इसकी जो परसेंटेजेस निकाल देंगे, टोटल आपके 14 बन गए, तो 14 में जो 71%, 21%, फिर ये कम्युलेटिव परसेंटेज 71 प्लस 21 92 प्लस 8 100%, ये कम्युलेटिव परसेंटेज आ गया। इनको आपने क्या करना है, आपने इनको करना है, इन्होंने इंडिविजुअल और एक्युमुलेटिव परसेंटेजेस को एक ही कैटेगरी में डाल दिए, एक ही लाइन पे। ठीक है बेटा? लेकिन ये यहाँ पे सारी चीजें अगर आप इसको देख लें, इसको फिर आपका 80% यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बेटा? यहाँ पे कर दे, और फिर जब आपकी कर्व जहाँ पे कम्युलेटिव, ये जो कर्व है ये वाला, ये जहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो इससे वर्टिकल लाइन खींच दी यहाँ पे, तो ये आपका जो है हाई प्रायोरिटी या वाइटल फ्यू है। तो अगर आप इसको देख भी लेके 71% का जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ बेड साइज की वजह से आ रहा है, तो आप अगर बेड साइज को कंट्रोल करें तो 71% डिफेक्ट तो आप ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे हो फिर यहाँ पे। ठीक है बेटा? Sir. जी, अब समझ आ रही बेटा कि नहीं? Sir, clear है। सर अच्छा चले, मैं 11 आपको, बजे एथिक्स की जी? क्लास भी है, इंजीनियरिंग की 11 बजे इंजीनियरिंग एथिक्स की क्लास है सर हमारी। बस एक 5-10 मिनट मुझे दो, इंजीनियरिंग एथिक्स कौन पढ़ा रहा है बेटा? अरसलान साहब, मोहम्मद अरसलान। अच्छा, 1 मिनट, मुझे 5-10 मिनट दो, मैं बस लेक्चर खत्म करता हूँ। ठीक है? अच्छा, ओके सर। परीटो एनालिसिस, ये देखिए आपके प्रॉब्लम जो है वो क्या बेटा, लाइट स्प्रे की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, रन्स की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ड्रिफ्ट्स की वजह से, ब्लिस्टर, स्प्लटर, बेड पेंट्स, ओवरसीज, ओवर स्प्रे या अदर, या कोई भी प्रोडक्ट हो उस पर अगर आप पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग में कि ये
उस पर लाइट स्प्रे की वजह से, या फॉर एग्जांपल जब आप इसको पेंट कर दे तो जो जो पेंटिंग है वो इस तरह ड्रॉप होता है, ठीक है बेटा, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी नंबर जो फ्रिक्वेंसी है वो ये है 582 कंप्लेंट्स लाइट स्प्रे की वजह से, 434 रन्स की वजह से, 227 जो आपके हैं वो इस तरह, ये मुख्तलिफ ऑर्डर में, इसको पहले उन्होंने री ऑर्डर कर दिया पहले से, ठीक है बेटा। ये इस तरह भी हो सकता है कि ये 582 डिफरेंट हो नीचे हो और 434 ऊपर हो, तो आपने इसको री ऑर्डर करना है। जब इनको री ऑर्डर कर दिए तो इसका ये इस तरह बन गया, ठीक है बेटा। फिर इंडिविजुअल परसेंटेज आप इनको इस तरह सम, ठीक है बेटा, इनको आप जब सम करते हो तो ये क्या होता है 11881, तो ये 1881 यहां आ गया बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, फिर इसका हर एक का परसेंटेज आप निकाल दो, तो ये परसेंटेज फिर कम्युलेटिव, इसका 30 कम्युलेटिव, फिर 30 के साथ 23 ऐड कर दो, जिस तरह ये है, ये इस तरह है, दिस प्लस दिस, ये क्या हो गया, सॉरी ये नहीं, इसको आप कर दे 30.9, ठीक है बेटा, इसको आप कर दे सम, या नहीं, दिस प्लस दिस, ये आपका 54 बन गया। और जब आप इसको इसको इस तरह इसको ड्रैग आउट करें तो ये आपका 100 बन जाएगा, तो ये हर एक इसके साथ फर्दर ऐड हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ आ रही है बेटा? और इसकी वजह से फिर ये लास्ट कर, ये कम्युलेटिव परसेंटेज है। अब यहाँ पे आप इसका जो है 80% आप ड्रा करें यहाँ पे, और इसको आप फिर इस तरह कंट्रोल करें, तो आपके फिर ये आपके वाइट एल क्यू हो जाएंगे और ये आपके ट्रेवल में नहीं हो जाएंगे, ठीक है बेटा। इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल चेंजेस करते हो 582 की जगह आप इसको लिख देते हो 435, तो फिर आपकी सारी चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है बेटा। आप इसको 212 की बजाय 176 कर देते हो, तो फिर ये सारी चीजें ये ऐसे ऐसे उसके साथ चेंज हो रहा है, ठीक है बेटा। ये आपके 126 या 141 की जगह आप 243 कर देते हो, तो फिर चेंज हो जाती है सारी चीजें। तो इस ऐसे ऐसे आपका जो कलाम कर्व है वो भी चेंज हो रहा होता है, ठीक है बेटा। यस सर। जी, एनी प्रॉब्लम? नो सर। आप सरफील की बुक उठा लें और उसमें परेटो एनालिसिस के कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको आप सॉल्व प्रॉब्लम भी है और इस तरह भी प्रॉब्लम है, तो आप इसको सॉल्व करें, ठीक है बेटा। यस सर। ओके सर। फिर भी अगर कोई इशू हो तो लेट मी नो, ठीक है बेटा। ओके सर। अच्छा, अब भी कोई क्वेश्चन है तो बता दे बेटा। आप
ओके बेटा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कोई क्वेश्चन है बेटा? जी, नो एनी सर। क्वेश्चन? नो सर। ओके बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं ज़रा रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर दूं।